All right, so the last point where we have finished or ended the last lecture, the packing of DNA helix, right? So packaging word must, be implied or to be implied because we have found the reason yesterday that you have a very long polymer of the DNA. When we calculated total number of DNA versus the length, so we found that 2.2 meter long DNA we have. It is not a single chain, it is 46 chains, but cumulatively we have 2.2 meters of the total length of the DNA present into a single nucleus. अब प्रॉब्लम यह है कि उसको उसी न्यूक्लियस के अंदर, सिंगल न्यूक्लियस के अंदर आपको पैक करके रखना पड़ेगा. सो पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो with respect to the packaging must be inside the nucleus, and with reference to nucleus, now we have divided cell into two categories: primitive nucleus, prokaryotic, very developed nucleus, eukaryotic. So both cells are far different, and the difference is of nucleus. It is the difference of nucleus, that's why it is prokaryote, eukaryote. So definitely both kind of cells must have different types of packaging. So packaging must not be same. So that's the first thing we should consider before we enter packaging of the helix in the cell. So first category would be the the arrangement within the prokaryotic cell. Then we will go for the packaging into the eukaryotic cell. Now let us recall some informations, basic informations whatsoever we have studied in chapter number 8 earlier and chapter number 2 later. That's about the microorganism called bacteria or amoneras, I mean. So with respect to the structure, what they have, their genetic information, their genetic material, can anybody recall the information? What is the chemical nature of this genetic material? Chemically क्या बोलेंगे हम उसको? Yes? Sir, they are classmates. Genetic material chemically क्या है? That's my question. Chemically क्या है वो? Okay. You must have recalled this terminologies. It is न्यूक्लियोप्रोटीन. याद है ऐसा कोई वर्ड आपके जहन में कहीं पे आया होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन. ओके, आरएनए के स्ट्रक्चर में भी आया था. नॉट आरएनए एग्जैक्टली, बट राइबोसोम. राइबोसोम के स्ट्रक्चर में भी आया था, राइट? इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन. सो इट इज कॉमन वर्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, वेयर it is a combination of nucleic acid and protein. So here your genetic material is composed by these two different kind of chemical structures. Now as you know, the nucleic acid which is composing the genetic material is DNA, and the protein which is required there is histone. This you might have recalled back from your past informations. All right, one more thing has to be added into the list. When I think about prokaryotic genetic material,
Structurally, they are divided into two subcategories. Definitely structurally and functionally both. So they have two kind of genetic material. अगर याद है तो आप बोल सकते हो, इफ यू रिकॉल्ड दिस, कि कौन से दो कैटेगरी के जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यू कैन फाइंड. या सर एक तो पता है, दूसरा याद नहीं आ रहा. हाँ, एक तो अभी आपने बोला था प्लाज्मिड थोड़ी देर पहले. चलिए लिख लेते हैं. राइट, ऑलराइट. एक का नाम है, न्यूक्लियोइड. यस गुड, किसने बोला? वाह, गुड जेनिफ. एक है न्यूक्लियोइड. राइट, एक है प्लाज्मिड, एक है न्यूक्लियोइड. जितना भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अभी के लिए वो सब मैं वन बाय वन दोनों के सामने लिखता जाता हूं ताकि हम रिकॉल कर सके द इंफॉर्मेशन वी नीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोइड जो है इट इज मेन जेनेटिक मटेरियल. राइट, इट इज मेन जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं इट इज जीनोमिक डीएनए. अगर ये वर्ड फिर से आप रिकॉल कर सको तो, अदरवाइज आज के बाद याद रख लेना, है ना. इट इज जीनोमिक डीएनए. फाइन. और ये जो है ये एक्सेसरी है. एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा है. एंड ये जीनोमिक नहीं है, ये नॉन जीनोमिक है. ये नॉन जीनोमिक है. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. ऑलराइट, गुड. अब ये मेन क्यों है, राइट उसके पीछे का एक मेन रीजन ये है कि इट इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोलिंग main metabolic activities of cell. सेल की जो मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो यही कंट्रोल करता है. नॉर्मल जो आप रेस्पिरेशन, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ऐसे काम जो है वो ये कंट्रोल करता है. इसलिए वो न्यूक्लियोइड या तो जीनोमिक उसको हम बोलेंगे. नॉन जीनोमिक इसलिए है कि हर एक में होना जरूरी नहीं है उसका. कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता है. अब जिसमें होता है उसमें जो हमने काम सोचा था, मीन्स पढ़ा है, मीन्स व्हाट्सएवर गिवन इन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसको याद है? प्लाज्मिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यस एक मिनट बरोड़ा को बोलने दो. बेटा बोलो, आप बोल सकते हो. सॉरी, मैंने एस की जगह पे जेड लिखा है. प्रोटेक्ट करता है. फिर से वो प्रोटेक्ट करता है अननीड जो क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेट कंडीशंस. ऑल राइट, ओके. इंफॉर्मेशन करेक्ट है बट वर्ड्स जो यूज होने चाहिए टेक्निकली दैट इज नॉट फाउंड. तो भुज याद है ऐसा कुछ परफेक्टली जो टेक्स्ट बुक में गिवन वर्ड है वो? सर एंटीबायोटिक्स. ओके ओके. टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन है, से फॉर एग्जांपल कि मॉर्फोलॉजिकल कंट्रोल को वो कंट्रोल करता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है. अब मॉर्फोलॉजिकल मीन एक्सटर्नल आपको जो दिखता है, तो वो उसको रेफरेंस, किस रेफरेंस से हमें एसोसिएट करना है. तो बाहर से क्या दिखेगा? अगर कोई बैक्टीरिया है से फॉर एग्जांपल, तो सबसे बाहर जो दिखना है उस बैक्टीरिया के बारे में वो है उसका ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटेक्टिव लेयर. तो प्रोटेक्टिव लेयर को वो कंट्रोल करता है, आई मीन नथिंग एल्स. तो उसका एक ही काम है, राइट वो एक्स्ट्रा सर्विस देता है. इन शॉर्ट, कंट्रोल्स द
cell wall and ग्लाइकोकैलिक्स। अब फॉर्मेशन भी वही करेगा, सिंथेसिस भी वही करेगा, मेंटेन भी वही करेगा, जो भी चेंजेस चाहिए वो वही करेगा, बट उस एसोसिएटेड टू दैट ओनली, नथिंग एल्स। याद रह जाएगा आज से, है ना, भूलना नहीं है। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हर एक टाइम पे जरूरी है ये इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो है वो लॉन्ग पॉलीमर है, ये जो है वो शॉर्ट पॉलीमर है। ओके, सर्कुलर दोनों है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, दोनों सर्कुलर ही है। ये इतना बड़ा, इतना लॉन्ग है कि आपको लगेगा नहीं ये सर्कुलर है। तो इतना बड़ा जो सर्कल है उसको उसके अंदर प्लेस करना हो तो हमें अब जो रिक्वायरमेंट है वो है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग क्यों चाहिए उसका मैं आपको रीजन समझाने के लिए उसको रिकॉल किया पूरी इंफॉर्मेशंस को। सो इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई a well defined nucleus is absent, इसीलिए तो उसको हमने प्रोकैरियोटिक बोला है। Yet the DNA in their cells is not scattered throughout the cytoplasm within the cell, ऐसे छुट्टा छवाया नहीं है। It is well organized and pegged and placed at a certain place। आप देख सकते हो यहां मेरे पीछे बहुत मस्त सी डायग्राम आपके सामने रखी है। ये पूरा सेल है, उसके अंदर का व्यू भी आपको दिया हुआ है, जहां पे ये जो इन द सेंटर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडेंस्ड फॉर्मेशन, कंडेंस्ड फॉर्मेट है, राइट। तो ये कंडेंस्ड फॉर्मेट है, वो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है वो। क्या है वो? न्यूक्लियोइड। उसके एग्जैक्टली शार्पली बाजू में यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मिड। तो दोनों है यहां पर। तो प्लाज्मिड तो एकदम छोटा सा सिंगल रिंग है, ये इतनी बड़ी रिंग है, उसको पैक करके रखनी पड़ती है। अब पैकिंग जो होता है ना, वो इंफॉर्मेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि पैकिंग कैसे होता है। से फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा सा ये रिंग है, से फॉर एग्जांपल, अब इसको मुझे इतने से में इतनी जगह पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फोल्ड करूंगा, ऐसे ऐसे फोल्ड करूंगा, ये हो गया फोल्डिंग। तो ये पूरा इतनी ही छोटी सी जगह पे आ गया। अंडरस्टूड? यस और नो? So that's what happened there। ये हुआ है उसके अंदर। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको जूम करके आपको समझाने का मैं यहां पे आपके सामने रख रहा हूं, ये जूम कर रहा हूं इसको, राइट। इसको मैं जूम कर रहा हूं। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो डीएनए है। अब डीएनए को जोड़ के रखने के लिए मुझे चाहिए प्रोटीन, तो ये प्रोटीन है इन बिटवीन, ये प्रोटीन उसको पकड़ के रखता है ताकि ये उसका शेप एंड साइज को वो मेंटेन रख सके। समझ में आ रही बात? अब ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में उलझ जाएगा, घूंचड़ा वर जाएगा, रेडी। ये हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा, टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो, है ना। घूंचड़ावर जाना ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये समझने के लिए है, बट कंडेंसेशन हो जाएगा, हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इट इज गिवन हियर। बस यही तो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्मेशन।
तो ये तो फ्लोट कर रहा है ना वाटर के अंदर, तो एक दूसरे के साथ ऐसे क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तब ऐसा दिखेगा वो। तो वो जो ऐसे 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 मैंने, उसको हम लूप बोलेंगे, लूप। क्या बोलेंगे, लूप। तो पैकेजिंग जो यहां पर होता है ना, वो लूप फॉर्मेशन से होता है। कैसे होता है, लूप फॉर्मेशन से। तो देखिए, एक हमने सोचा था, देखा था न्यूक्लियोइड के बारे में। क्या है न्यूक्लियोइड, उसके अंदर होता है आपका भैया डीएनए, और दूसरा होता है प्रोटीन्स। दोनों से बनता है आपका न्यूक्लियोइड। किससे बनेगा, डीएनए एंड प्रोटीन। चलिए, अब यहां पे हम जो बात करने वाले हैं एक और एडिशनल फीचर की, वो ये है कि देखिए, डीएनए के सामने मैंने लिखा है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटीन के सामने लिखा होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना और जान के याद रखना। मुझे अगर न्यूक्लियो प्रोटीन एसोसिएशन करना है तो दो अलग अलग टाइप के केमिकल है जिसको जुड़ना है साथ में। तो अगर उसकी पोलैरिटी को मैं कंसीडर करूं, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दे कुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट विथ ईच अदर, कभी ज्वाइनिंग नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव है, नो। पॉजिटिव नेगेटिव है, यस। तो एक को रहना पड़ेगा पॉजिटिव, एक को रहना पड़ेगा नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव कौन है, देखिए प्रोटीन है, नेगेटिव कौन है, डीएनए। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियो प्रोटीन में डीएनए नेगेटिव होता है, प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चलो, रह गया याद, है ना। अभी तो सबको याद रह जाता है। लेक्चर जब खत्म होगा, दूसरा लेक्चर शुरू होगा, दूसरे लेक्चर के एंड में आगे के लेक्चर में क्या होगा वो कुछ नहीं पता है ना। सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही सास नहीं बन गई है ना। तो थिंग इज दैट कि हमें घर जाके एक बार आराम से रिकॉल करना रिक्वायर्ड है। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, अभी भी आपके पास प्रॉपर यूटिलाइज कर लो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, परफेक्ट इंटेंशन के साथ, प्योर ऑनेस्टी के साथ पूरा 11th एंड 12th अगर आप देख लो एक बार, नीट में आप चाहो उतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बट अगेन एज आई सेड कि आपको प्योर इंटेंशन चाहिए एंड प्योर ऑनेस्टी चाहिए। मैंने बोला समझ लिया सबने, आप बोलेंगे यस समझ लिया, बाद में कौन तू कौन मैं, ये नहीं। यहां से समझ लो, यहां से याद रखो, यहां से मेहनत करो, है ना। अपने को तो रिजल्ट चाहिए उसमें से, वो ऐसे रिजल्ट के फॉर्मेट में वो एनकैश आप उसको कर सको, उस हिसाब से याद रखो प्लीज। ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है आपको। ये जो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इनटू द फॉर्म ऑफ लूप्स होता है। कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ लूप्स वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट विल बी फॉर्मिंग अ लार्ज लूप्स एंड दिस लूप्स आर हेल्ड बाय प्रोटीन्स। जो मैंने बीच बीच में प्रोटीन्स का एटम्स को ऐड करके उसको हेल्ड मींस पकड़ के रखा था। हेल्ड करना मतलब पकड़ के रखना। सो प्रोटीन का काम उसको पकड़ के रखना है ताकि वो अलग नहीं हो जाए, फिर से डिकंडेंस्ड ना हो जाए। सो दैट इज हाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज फाउंड इनटू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है यहां पर, यू कैन आस्क द डाउट और क्वेश्चन। एनी डाउट? ऑल राइट, थम्स अप। ऑल राइट, चलिए मैं जाता हूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। क्यों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज ये यूकैरियोटिक सेल है। अब कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट नेचुरली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑलरेडी आपको थोड़ा सा हिंट पता है कि डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है ना, वो इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। बस उतना आपको पता है, ये वर्ड आप जानते हो।
ये वर्ड आप जानते हो, वर्ड, स्ट्रक्चर नहीं। मुझे आपको स्ट्रक्चर समझाना है, क्लियर है ना? सो लेट अस गो थ्रू द डिस्कशन कि वो क्रोमेटिन कैसे बनता है। ओके, सबसे पहले हम दोनों के कंपैरिजन को सोचे कि प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल की साइज की कंपेयर करो, राइट? तो मिनिमम 20 टाइम्स बिगर सेल है ये, मिनिमम। अगर एवरेज निकालूं तो अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स बिगर तो होना चाहिए। 50 टाइम्स बिगर सेल है, तो उसका मेंटेनेंस, उसका सिंथेसिस, उसका फॉर्मेशन, सबके बारे में अगर सिर्फ सोचो ना तो कॉम्प्लेक्सिटी इज वास्ट। तो सबसे पहला जो चीज हमें कंसिडर करना है, दैट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए ऑल्सो इज कॉम्प्लेक्स हियर। क्यों? साइज के हिसाब से ही होगा, राइट? सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। ओके, नंबर 2, वो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अरेंज करता है? कॉम्प्लेक्सिटी को वो अरेंज कैसे करेगा? ओके, अगर मुझे उसकी, देखिए, एक तो लेंथ, प्रोकैरियोटिक की लेंथ वर्सेस यूकैरियोटिक की लेंथ को बात करो तो मैंने बोला एवरेज 50 टाइम्स बिगर है वो, तो उसकी जो कंडेंसेशन है वो इजी नहीं है। यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर डीएनए, उसका जो कंडेंसेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लूप फॉर्मेशन इज नॉट इनफ हियर, व्हाट आई मीन, समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो लूप फॉर्मेशन विल नॉट वर्क, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर कुछ और सोचना है तो कुछ और टाइप का प्रोटीन लगेगा इसमें अंदर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट प्रोटीन को बदलने की है। तो हमने यहां पर जिस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन किया है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, कैसा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, हिस्टोन, इसका यूज होता है। तो प्रोटीन चेंज करा हमने, राइट? सो अगेन वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये प्रोटीन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब एक पॉइंट ऑफ व्यू को आपको याद करना पड़ेगा। मैं आप बोल रहा हूं आपको कि यूजुअल प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर आइदर दे आर स्ट्रक्चरल और दे आर रोमिंग अराउंड इनटू योर बॉडी, इनटू द सर्कुलेशन और इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू बॉडी फ्लूइड्स, यूज्ड टू हैव टेंडेंसी टू बी नेगेटिव। यूजुअली वो नेगेटिव होते हैं। किसी को पता है? ये इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर सकते हो? ये आपकी टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कैन यू बी एबल टू रिकॉल इट? चलिए, चैप्टर नंबर 18, एड्रेस दे रहा हूं आपको। चैप्टर नंबर 18, साइटोप्लाज्म नेगेटिव प्रोटीन। भूत सेंटर चैप्टर 18 चल गया है। हाँ, बड़ौदा चैप्टर 18 हो गया है, अहमदाबाद चैप्टर 18 हो गया है। दिस इज नॉट फेयर, कम ऑन, है ना? इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स, उसके अंदर जो नर्व सेल है, उसका जो एक्सॉन है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर का कंपोजिशन आप मुझे समझा सकते हो? घर तक छोड़ आए आप, घर किसका है वो तो बोलो। बड़ौदा वाले, चलो चलो, आप अंदर अंदर ही बात कर रहे हो, मुझे बोल दो जो भी बोलना है। चल फटाफट, चल बेटा, बोल 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 बोल। सर वो आपने घर किसका है ऐसा बोला ना, तो मैं ऑलराइट, सर जो ग्रेनुअल था ना वो बोल रही थी। वो साइटोप्लाज्म होता है, डजंट चलो, अब साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन किसको पता है? चलिए फटाफट, अहमदाबाद, भूज, आप बड़ौदा आपको पता है तो बोल सकते हो।
पोलैरिटी क्या होती है अंदर की? साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट की पोलैरिटी क्या होती है? मेम्ब्रेन में एक तरफ एक पोलैरिटी होती है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ कुछ और पोलैरिटी होती है, अंदर की तरफ कुछ और पोलैरिटी होती है। अंदर की पोलैरिटी क्या है मेम्ब्रेन की? चलिए बोलो भोज। सर पहले नेगेटिव होता है। यूजुअली वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होती है, अंदर की पोलैरिटी नेगेटिव होती है। उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन किया है वहां पर कि इसलिए नेगेटिव होती है। क्या क्या वो रीजन है? प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज इनसाइड है। अब सीधा प्रोटीन मैंने समझाया तो प्रोटीन को उठा के मेरे सामने मेरे मुंह पे मार दिया कि ये आप जो इसमें की बात कर रहे हो ये है ना? मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट के बारे में, मीन्स वो प्रोटीन ही है ऐसा नहीं, जितना है सब मुझे समझाओ, क्यों नेगेटिव है वो अंदर? हाँ, उसमें से एक प्रोटीन है वो मुझे पता है ना, और आपने भी अपना दिमाग लगा के वो मेरे सामने मेरे मुंह पे मार दिया, वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन और भी रीजन हो सकते हैं ना नेगेटिव होने के। हाँ बोलो। क्योंकि सर मेम्ब्रेन पोलराइज है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैनेज करके रखना है और बाहर पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें पोलराइज ही रखना है। पोलराइज रखने के लिए अंदर की तरफ मैंने क्या किया? नेगेटिव चार्ज। पोलराइज रखना है मुझे, बाहर की तरफ मुझे पॉजिटिव चार्ज रखना है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। हुआ क्यों? मैं ऐसा तो बोल रहा हूं, क्यों नेगेटिव है अंदर? करने के लिए कुछ तो करना पड़ा होगा ना साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन मेंटेन करता है आइदर टू बी पॉजिटिव और टू बी नेगेटिव? कौन डिसाइड करेगा? यस सर आयन चैनल्स और बॉन्ड्स। से फॉर एग्जांपल देयर इज नो सेल, देयर इज अ केमिकल, उसमें कुछ पॉजिटिव पार्ट होगा, कोई नेगेटिव पार्ट होगा, तो वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कौन डिसाइड करेगा? उसकी पोलैरिटी खुद की, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बेस पे मीडियम की पोलैरिटी डिसाइड होती है। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर सॉल्यूशन है से फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 60 पॉजिटिव है और 40 नेगेटिव है, तो वो सॉल्यूशन की पोलैरिटी तो पॉजिटिव बोलूंगा ना मैं। अब ये मैं हिंट दे रहा हूं। अब तो आप बोल सकते हो, मैं जो पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन जो पुराना जो था वो स्टिल इट इज पेंडिंग, कि एक्सोन है उसका न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस क्या, साइटोप्लाज्म है, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, क्यों है? अब फिर से प्रोटीन को मत चिपकाना मेरे ऊपर, उसके अलावा भी होगा कुछ। ખબર નહીં કશું તો દિમાગમાં ચાલે કહી દઉં. હા ગમે તે તારે ચાલશે જ ભાઈ। મને એવું લાગે કે જે પોઝિટિવ નેગેટિવ ની વાત કરે ને તો મને એક ડાયાગ્રામ યાદ આવે છે, એમાં એવું કશું હતું કે જે એનીથિંગ ઇઝ વેલકમ, એનીથિંગ ઇઝ વેલકમ। એવું કહેતા હતા કે બહાર સાઈડ સોડિયમ સોડિયમ રખતા, હા બહાર સાઈડ સોડિયમ રખતા હતા ને અંદર સાઈડ પોટેશિયમ ને અમે નેગેટિવ લેતા હતા, એવું કશું હતું। તો ભાઈ લા, બે પોઝિટિવ છે, Na પોઝિટિવ છે ને K પણ પોઝિટિવ છે, સો ધેટ વિલ નોટ ફુલફિલ માય ડાઉટ। ચાલો હવે બીજું કોઈ છે આમાં? આ ડોક્ટર જો તમારી સામે બેઠા એ બધા, ઓકે બોલો, ભુજવાળા ડોક્ટર બોલો, હાલો। સર પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન की permeability। ओके नेक्स्ट। सो वो सर बाहर जाने नहीं देगा नेगेटिव चार्ज। okay, I am now coming to permeability. What sort of ions
what sort of molecules is permeable? Yes, बोलो. सर H2O ये ऑनलाइन है, लाइव है, गाढ़ बोल सकता नहीं मैं, है ना, तो थोड़ी लिमिटेशन मेरी भी यहाँ पे आ जाती है ना. H2O के लिए स्पेशल हमने चैनल बनाई है जिसको एक्वापोरिन बोला था. एक्वापोरिन याद आ गया ना. स्पेशल चैनल, ऐसे ही नहीं जाता है, उसको चैनल चाहिए भैया. नहीं, कुछ याद नहीं है तो याद अब कैसे आप करोगे? क्या करूंगा मैं? पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता वो, है ना, तो आपको रीड करना पड़ेगा ना. सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड्स है ना अभी, तो मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूं यहाँ पर. आप 5 ही हो तो मुझे बहुत ज्यादा तो पेन नहीं लेना पड़ेगा ना पूछने में कि किया या नहीं किया है ना. सो प्लीज मेक अ सीरियस कंसर्न अबाउट इट. चैप्टर नंबर 8 एक बार थरली रीड कर लेना, राइट. उसमें परमिएबिलिटी वाला भी खास याद कर लेना. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज परमिएबल, उसको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. नन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन एंटर द सेल. दुनिया का कोई भी लिविंग मेम्ब्रेन कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता है. प्रोटॉन, छोटे से छोटा पॉजिटिव पार्टिकल नहीं जा सकता है. उसके लिए भी एटीपीएस डाला था हमने, याद है ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमने वो एटीपीएस F0 F1 वाला, तो कोई भी नहीं पेनिट्रेट कर सकता है. सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुस नहीं सकता है. घुसना है, घुस नहीं सकता है तो एक्यूमुलेट हो जाएगा बाहर. ये अंदर है, ये बाहर है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहे हैं. अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव. सिंपल सा लॉजिक है यार, कम ऑन. तो यूजुअली अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, बाहर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ज्यादा. इसीलिए अंदर नेगेटिव पोलैरिटी है, बाहर पॉजिटिव पोलैरिटी है. दैट्स द रीजन, मेन रीजन ये है. यस सर बोला तो था परमिएबिलिटी. ऐसा ही करना. बोर्ड के पेपर में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ऐसा लिख लेना कि परमिएबिलिटी, है ना. वो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे 4 में से 4. उसमें बाकी का तो क्या है कि वो तो बेचारा एग्जामिनर है ना, जिसको जस्टिफाई करना है कि उसमें क्या करना है, परमिएबिलिटी क्या करेगी. ऐसा, एम आई करेक्ट ना? गुड. आप डॉक्टर बनो ना, डॉक्टर. नौकरे नारायण मेरे को आना पड़े आपके पास, आप पूछोगे ना होता क्या है सर, कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो बोलूंगा ताओ, बात खत्म. बाद में पूरा आपको निकालना है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या खाया था, क्या निकाला था, सब, है ना. वो पता चल जाएगा. ऐसे जवाब देने में क्या मजा आता है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. सो यूजुअली प्रोटीन नेगेटिव होता है. कैसा होता है? यूजुअली प्रोटीन नेगेटिव होता है. आपकी बॉडी के जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोटीन है ना, वो नेगेटिवली चार्ज है. हमारे पास 2 चॉइस है मॉलिक्यूल की, एक डीएनए है, एक प्रोटीन है. दोनों में डीएनए का चार्ज हम नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, उसको नेगेटिव ही रख सकते हैं, पॉजिटिव नहीं कर सकते. क्यों? 4 ही मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, मोनोमर्स 4 ही है उसके पास रिप्लेसमेंट में. एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, 4. अब इसका कोई भी टाइप का कॉम्बिनेशन कर लो ना आप, तो नेगेटिव ही बनेगा. समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? बट एमिनो एसिड हमारे पास 20 है डिफरेंट टाइप्स के,
तो वहां पे मैं अगर थोड़ा रिप्लेसमेंट कर दूं ना अरेंजमेंट में, तो वहां पे वो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर सकता हूं। तो नेगेटिवली प्रोटीन में से मैंने पॉजिटिवली प्रोटीन को बनाना है, तो मैंने क्या करा पता है? देखिए यहां पर लिखा ही है, a positively charged protein group containing alkaline amino acids like lysine and arginine। प्रोटीन की चेन में मैंने दो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। एक है लाइसिन और एक है आर्जिनिन। ये दोनों अल्कलाइन अमाइनो एसिड है। तो जैसे अल्कलिनिटी बढ़ी ना, वैसे पॉजिटिवली चार्ज हो गया नेगेटिव में से। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, राइट? समझ में आ गया पूरा मैटर? तो ये एक स्पेशल केस है, ये नीट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक्सेप्शन है प्रोटीन में जो पॉजिटिव है। यूजुअली प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यहां पे पॉजिटिव करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए मुझे उसका ऑपोजिट चार्ज चाहिए। अब कैसे करना पड़ा? तो कैसे का मतलब ये है जवाब कि उसके अंदर मैंने पॉलीमराइजेशन जब किया था अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो एसिड में मैंने आर्जिनिन या लाइसिन का यूज ज्यादा कर दिया, तो वो अल्कलाइन हो गया। इसलिए उसका जो चार्ज है दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता हूं, है ना? अब हिस्टोन की अरेंजमेंट के बारे में बात करूंगा। आई वुड लाइक डेफिनेटली टू रिमाइंड यू दैट हिस्टोन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन अगेन, राइट? तो ये एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल। उसके बाजू में मैंने रखा दूसरा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, इसके बाजू में मैंने रखा नीचे तीसरा एंड चौथा। ये चार मॉलिक्यूल सेट है, चार का एक सेम सेट, चार का मैंने उसके पीछे अरेंज किया लाइक दिस। ये तीसरा, चौथा उसके पीछे है तो दिखेगा नहीं मुझे, करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं मेरे पास यहां पे मॉलिक्यूल? 8। 8 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को मैं बोलूंगा मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, ऑक्टामर है। ये कैसा है? ये 8 है तो ऑक्टामर हो गया है। ये स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलूंगा? हिस्टोन ऑक्टामर। चलिए मैं वापस आ जाता हूं मेरी स्लाइड पर। ये रहा आपका हिस्टोन ऑक्टामर, सेकेंड अरेंजमेंट। हिस्टोन का मैंने 8 मॉलिक्यूल का सेट बना दिया, जिसको मैंने नाम दिया है हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, अब मैं जा रहा हूं अगेन डायग्राम के पास। तो अब मुझे इसके साथ डीएनए को जॉइंट करना है। तो डीएनए में क्या होगा कि डीएनए की सही फॉर एग्जाम्पल ये चेन है, तो यहां से आएगी, ये पीछे है, पीछे की साइड, यहां से वापस ऐसे घूम के पास फिर वापस गई। एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, पूरा दूसरा चक्कर, राइट? एंड यहां से ये एक साइड से जब एंट्री ली यहां से, तो ये दूसरी साइड से वो एग्जिट करेगा। बट एग्जिट करने से पहले उसने 2 राउंड लगाए हैं यहां पर। कितने? 2 राउंड लगाए हैं। तो यहां से से फॉर एग्जांपल शुरुआत की, यहां पे वो एंड हुआ है, से फॉर एग्जांपल। तो ये डीएनए यहां से एक साइकिल, दूसरी साइकिल एंड बाद में वो निकला बाहर। चलिए इसमें कोई डाउट है? राइट, ओके। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर ने डीएनए को खुद के आजू बाजू में रैप अराउंड कर दिया। क्या कर दिया? रैप अराउंड, रैपिंग होती है यहां पर डीएनए की, राइट? तो उस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं यहां पे न्यूक्लियोसोम।
क्या बोलूंगा मैं उसको? न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए की जो बेस पेयर होती है वो बेस पेयर होंगी 200 बेस पेयर लॉन्ग। उसकी जो लेंथ होगी 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए रेप अराउंड होता है उसके अंदर, सिंगल लूप में, न्यूक्लियोसोम में। डन? ओके, सो वापस मैं मेरी स्लाइड पे आ गया। तो यहां पे आपको देखने को मिला है न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम ऐसे बनता है। सो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए wraps around the positively charged histone octamer to form a very unique structure, and that unique structure is nucleosome. चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? the histone octamer, nucleosome. अब मैं न्यूक्लियोसोम की अरेंजमेंट समझाता हूं आपको। क्या समझाऊंगा? न्यूक्लियोसोम की अरेंजमेंट टू फॉर्म अ क्रोमेटिन। रेडी? ओके। ये नाम है क्रोमेटिन। क्रोमा, कलर। क्रोमा लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। टिन, दैट इज थ्रेड, यू कैन से फिलामेंट, राइट? फिलामेंट, लॉन्ग चेन। सो कलर्ड थ्रेड, ऐसा नाम उसको मिला। क्रोमेटिन का मतलब ये होता है कलर्ड थ्रेड। अब मैं उस टाइम में वापस चला गया हूं जब ऑब्जर्वेशंस हो रहे थे सेल के स्ट्रक्चर्स के। तो सेल को अगर मुझे माइक्रोस्कोप में देखना है तो डेफिनेटली वी नो द बेसिक फंडामेंटल रूल कि उसको मुझे स्टेन करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, सो दैट आई कैन व्यू वेरियस पार्ट्स easily. I can observe them easily, I can study them easily, I can distinguish them. Am I very correct or not? So stain करने के बाद जब पहली बार न्यूक्लियस के अंदर केयरफुल ऑब्जर्वेशन करा गया तब न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर मिला। इसलिए उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया क्रोमेटिन। तो उसका नाम उसकी अपीयरेंस की वजह से मिला है उसको। वो कैसा दिखता था उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ओके, अब मैं उसके दो टाइप के बारे में बात करूंगा। क्रोमेटिन व्हाटसोएवर यू हैव विद इन योर न्यूक्लियस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू सब कैटेगरीज। क्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, आई रिपीट, अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अब उसको मेटाबॉलिज्म क्या करना है? वो तो डीएनए है। डीएनए ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है? कौन बताएगा? देखो, मैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। सेंट्रल डोग्मा याद कर लो, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, सो इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो अगर वो डीएनए, वो क्रोमेटिन का पार्ट कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है, दो पार्ट, राइट? एक का नाम है यूक्रोमेटिन, एक का नाम है हेटेरोक्रोमेटिन।
अब ये नाम क्यों पड़ा है उसका रीजन पहले दिखा देता हूं आपको कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है। यूक्रोमेटिन है ना, वो लाइटली स्टेन हुआ, ये डार्कली स्टेन हुआ। एक की लाइट स्टेनिंग होती है, एक की डार्क स्टेनिंग होती है। उसके पीछे का रीजन मैं बाद में अभी समझाऊंगा, है ना। अब मैंने जो रीजन आपको समझाया वो कि ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। एक्टिव इनएक्टिव कैसे है? प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। ओके, ये कम है, स्मॉल क्वांटिटी में है, ये लार्ज क्वांटिटी में है विद इन द सेल। चलिए एक और फेनोमेना आपको डेली रूटीन लाइफ का समझाता हूं, आपके लाइफ का, आपके डेली रूटीन का। मॉर्निंग में जब आप बैग लेते हैं तो से फॉर एग्जांपल आपके बैग में 3, 4, 5 सब्जेक्ट की बुक है। जैसे ही पहला क्लास लेक्चर शुरू होता है, आपने बैग को खोला और 5, 6 सब्जेक्ट की बुक निकाल के आपके डेस्क के ऊपर पाथर दी। ऐसा होता है? ऐसा होता है? 5 बुक खोल के बैठे हो, अभी एक ही खुली है ना, बायोलॉजी की, तो फिजिक्स की क्यों नहीं खुली है अभी? नॉट रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री की क्यों नहीं खुली अभी तक? नॉट रिक्वायर्ड, है ना। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल। तो आपके पास आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं, उसका पूर्वज तो एक ही है ना, जाइगोट, और उसकी मल्टीप्लिकेशन से ही पूरी बॉडी के सेल बने हैं। तो जितना डीएनए का कंटेंट जाइगोट के पास था, सभी सेल में सेम डीएनए का कंटेंट होगा, बट एज पर डिफरेंशिएशन मेरी आंख को देखने का काम करना है, राइट। अब उसको एसिड का सिक्रेशन करना पड़ेगा, तो वो जो जीन उसके पास है उसको वो एक्टिव रखेगा या इनएक्टिव रखेगा, राइट। तो इन आंख के सेल्स के पास जो डीएनए है उसमें उसको जितना रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी के जीन को वो क्या रखेगा, एक्टिव। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही स्मॉल क्वांटिटी में, बाकी का इनएक्टिव रखेगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी है। तो सभी ऑर्गन के, सभी पार्ट के, सभी टिश्यू की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसके अंदर या तो हेटेरोक्रोमेटिन या तो यूक्रोमेटिन का प्रोपोर्शन फिक्स होता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल, है ना। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इवन आंख का जितना यूक्रोमेटिन होता है उतना ही इस मसल्स का होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का यूक्रोमेटिन का प्रोपोर्शन अलग होगा, दोनों का हेटेरोक्रोमेटिन का प्रोपोर्शन अलग होगा। सो वो तो आपकी एक ही बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर इसकी प्रोपोर्शन जो है दोनों की डिफरेंशिएट होती है। जो मसल्स के सेल में यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन का जो रेशियो है वो स्टमक में नहीं है, से फॉर एग्जांपल, या तो वो स्किन के सेल में ऐसा नहीं है, अलग है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट दोनों की अलग है। क्लियर हो रहा है पूरा मैटर मैं जो बोल रहा हूं? तो यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन दो टाइप के क्रोमेटिन है। अब ये लाइट या डार्क स्टेन क्यों होते हैं? स्टेनिंग जब होती है तो एक लाइट स्टेन होता है और एक डार्क स्टेन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें
जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड नहीं लिखा मैंने यहां पे, अवे फ्रॉम ईच अदर ऐसा लिखा है। सो दे आर लूजली पैक्ड। यहां पे वो टाइटली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है एंड टाइटली पैक्ड है। दिस इज द रीजन वाई ये इसका स्टेनिंग लाइट होता है, इसका स्टेन डार्क होता है। क्लियर हो गया? अब ये कैसा दिखता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा कंडेंसेशन मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा है। ये डायग्राम शायद बुक में नहीं है, मॉड्यूल्स में भी शायद नहीं है, रेफरेंस बुक में, कुछ एक रेफरेंस बुक में आपको मिल जा सकती है ये। एनीवे, दिस इज द डीएनए व्हाट इज कॉल्ड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, है ना, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप कल बात हमने की थी। वो ये डीएनए पूरा यहां पे जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ये है न्यूक्लियोसोम। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, दिख रहा है? राइट? सो गैप में है ये गैप में है, तो मैंने इसको बोलना पड़ेगा यूक्रोमेटिन। क्या बोलना पड़ेगा इसको? यूक्रोमेटिन, है ना। अब यूक्रोमेटिन के अंदर आपने अगर स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व किया यहां पर, तो जब वो न्यूक्लियोसोम बनाता है तो वो जो डबल रैपिंग होती है डीएनए की, तो वो छटक के फिर से खुल ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक लॉक भी लगाया गया है। देखिए, तो आपकी बुक में भी अगर वो डायग्राम को आप ऑब्जर्व करो ना, तो H1 हिस्टोन करके एक स्पेशल ऊपर एक लॉक लगाया गया है, वो भी हिस्टोन ही है। क्या है? हिस्टोन। तो ऑक्टामर तो है ही। ऑक्टामर जब बन गया, न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा लॉक लगता है H1 हिस्टोन नाम के प्रोटीन का। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये एक दूसरे के एकदम नजदीक आकर एकदम एक दूसरे के साथ चिपक कर अरेंज हुए, तो उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जो नीचे है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हेटेरोक्रोमेटिन। क्या है ये? हेटेरोक्रोमेटिन। सेल साइकिल G1 S G2 M फेज प्रोफेज। प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप याद करो, सो इट इज कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो वो कंडेंसेशन क्या है? उस कंडेंसेशन में 3 इवेंट होते हैं। कितने? 3 इवेंट। उसमें पहला जो इवेंट होता है वो होता है ये कि हमारे पास सेल के अंदर जितना भी यूक्रोमेटिन है वो सब कन्वर्ट होके हेटेरोक्रोमेटिन बन जाएगा। सो एंटायर क्रोमेटिन कन्वर्टेड इनटू हेटेरोक्रोमेटिन, सब हेटेरोक्रोमेटिन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट इवेंट। दूसरा इवेंट, ये हेटेरोक्रोमेटिन कॉइलिंग करेगा, कॉइलिंग होगा हेटेरोक्रोमेटिन का। ये रहा, यहां पे दिखाया गया है, ये रहा, राइट? उसका कॉइलिंग होगा। तो ये जो फेनोमिना है, इसको मैं नाम दे रहा हूं कॉइलिंग।
ये कॉइलिंग हो रहा है। क्लियर? अब ये कोइल्ड स्ट्रक्चर जो है, कोइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो और फर्दर कोइलिंग का कोइलिंग होगा, कोइलिंग का कोइलिंग, जिसको मैं बोलूंगा सुपर कोइलिंग। यानी कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये राइट। क्या होगा? सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएट बन के देखिए क्या बन गया, क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। समझ में आ रही बात? अब उल्टी साइकिल, मेरे पास कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कोई भी एक आर्म, उसको मैं खींचूंगा तो मैं क्या देखूंगा? सुपर कोइल स्ट्रक्चर। सुपर कोइल स्ट्रक्चर को मैं खींच के थोड़ा सा दूर करता हूं, मुझे क्या मिलेगा? कोइल्ड स्ट्रक्चर। कोइल्ड स्ट्रक्चर में और खींचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन को और खोलूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? मुझे क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। दैट इज मेरे पास होगा न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम एक को मैं खींच लूंगा तो मैं प्योर डीएनए मुझे मिल जाएगा। समझ रहे हो? So this is what happens when your genetic material is condensed to form the chromosome, and that is at the time of cell division. So ऐसा पैकेजिंग होता है हमारी बॉडी का, सेल का, न्यूक्लियस का, क्रोमेटिन जो होता है उसमें, है ना? So this is how it is getting arranged within the cell. तो बहुत ही easiest है to remember, है ना? Remember, not to mug, to remember it is easy, है ना? समझने में ठीक ठाक इजी है, याद रखने में प्रॉब्लम है। टू मेमोराइज इट इज वेरी हार्ड। तो ये आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार भेजाफोड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके दिमाग में ये सब बैठने वाला है। सो दिखता है जितना इजी उतना इजी है नहीं। हाँ, जितना हार्ड आप उसको मे बी ले लोगे उतना हार्ड भी है नहीं। थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग के अंदर पूरा मैटर जो है वो घुस जाने वाला है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फाइन, न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमेटिन की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखी है वो ये है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए की एक चेन होती है। 200 बेस पेयर, मैंने आगे ही आपको डायग्राम के अंदर वो पूरा एक्सप्लेन करा था। ओके, उसकी जो अरेंजमेंट मैंने आपको समझाई ना, ये वाली अरेंजमेंट, ये कोई एक डोरी, उसके अंदर मणका, स्ट्रिंग्स, उसके अंदर बीड्स को आप अरेंज करो तो उस मॉडल की तरह वो लगता है। उस मॉडल का नाम दिया गया है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल। क्या नाम दिया है उसको, इसकी अरेंजमेंट को? बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, राइट। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर करी है कि व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, the nucleosomes present into the chromatin appears like beads on a string. कोई डोरी के अंदर मणका पिरो के आप माला बनाओ, ऐसी उसकी इंटरनल अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियोसोम की। सो ये मॉडल को नाम दिया गया बीड्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल। चलिए, कोई डाउट है? पक्का? श्योर? ऑल राइट। सो यही यहां पर जो मैंने पूरा डिटेल आपको समझाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल, अब भी बात करी, उससे बनता है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है क्रोमोसोम्स। सो 3 लेयर में उसकी अरेंजमेंट है। तो न्यूक्लियोसोम्स अपीयर लाइक बीड ऑन अ स्ट्रिंग, उसका कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमेटिन फाइबर्स बने। द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन फर्दर ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर्स। अब क्रोमेटिन फाइबर का कोइलिंग एंड सुपर कोइलिंग हुआ तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। याद आ गया, राइट। सो ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन, chromatin fibers become more coiled and organized to form the chromosome, appears very distinct, है ना? बहुत ही क्लियरली आप उसको देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। For higher level of packing of the chromatin, additional set of protein is required.
which are collectively called non-histone chromosomal और NHC प्रोटीन। अब ये और एक नाम आ गया, नीट का क्वेश्चन है, मान के चलना है आपको कि नीट में ही आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब ये है क्या, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। से फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है जो कि है डिप्लॉइड सेल, वो जब सेल साइकिल में इंटर करता है तब वो जब एस फेज में से G1 एंड एस फेज में निकल के जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है, पहले इसके न्यूक्लियर मटेरियल की बात करूं तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो डीएनए है, राइट, तो डीएनए प्लस हिस्टोन है। क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन है। एम आई करेक्ट? अब यहां पे तो डबल हुआ है ना, डीएनए डबल हो गया है, डीएनए प्लस डीएनए हो गया है, हिस्टोन डबल नहीं हुआ है ना। कहीं पे ऐसा आपने पढ़ा था कि हिस्टोन भी डबल होता है या सिर्फ डीएनए डबल होता है? रेप्लिकेशन में डीएनए ही डबल होता है। तो इसकी पैकिंग मैं कहां से करूंगा? इसकी पैकिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए ना मुझे, सो दैट्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहां पे उसको काम में लाया जाएगा। एनएचसी का यूज यहां पर होता है पैकिंग के लिए, एक्स्ट्रा पैकिंग के लिए। रेडी? ओके। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन जो आपको ऑलरेडी पता है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, राइट। यूक्रोमेटिन क्या है? सम रीजन्स ऑफ द क्रोमेटिन्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, बीच बीच में जगह है, सो दे आर लाइटली स्टेन्ड, इसलिए वो लाइटली स्टेन्ड है। इट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, जो मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस के पॉइंट्स लिखाए थे ना, वो यहां पे हाईलाइट हो रहे हैं, देखिए। सेम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें, हेटेरोक्रोमेटिन बहुत ही डेंसली ऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे के एकदम नजदीक नजदीक वो मॉलिक्यूल को अरेंज करा है उसने। सो स्टेन जो है उसकी एकदम डार्क होती है, डार्क होती है स्टेन, और वो ट्रांसक्रिप्शन ने यूज नहीं लेना है, इसलिए उसको बुक को बंद करके रखा है ना। बुक कौन सी खुली है? जिसका लेक्चर चल रहा है। कौन सी बुक्स बंद है? जिसका लेक्चर नहीं चल रहा है। अब अगर लेक्चर बदला तो ये बुक खुल सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बुक खोल नहीं सकते हो, ये बुक खोल सकती है, जब आपको जरूरत पड़े तब खुल सकती है, सिंपल। अंडरस्टूड? सो यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन के बारे का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको समझाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। आज के लिए इतना काफी है। जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा है कि न्यूक्लियस के अंदर उसको अगर ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना है तो किस फॉर्मेट में करते हैं, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। अब हम हिस्ट्री में जाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल को हमने कैसे कंसीडर किया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो सबसे पहला था वो आरएनए था, उसके बाद में डीएनए आया। तो अब मेन जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए को कंसीडर करेंगे या आरएनए को कंसीडर करेंगे? हेरिडिटी कौन कर रहा है? ये सब देयर आर मेनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एट दैट टाइम। आज नहीं, आज हमको पता है। एट दैट टाइम दे वर कंफ्यूज्ड कि हम कैसे नक्की करें कि यही ये है और यही ये है। तो वो सब हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो डिस्कशन में लेंगे, राइट। सो तब तक आई टेक योर लीव एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यस बेटा, भुज सेंटर। सर, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे तो उनमें जो प्रोटीन यूज हुआ वो कौन सा होगा? हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ऐसा वर्ड यूजुअली बुक के अंदर फाइंड किया गया है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। सर, नहीं, वो बोल सकते हैं हम नॉन हिस्टोन,
बट ये जो बात थी ना बेटा, हमने जहां पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की बात की थी, तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की. वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. सो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में दो टाइप के प्रोटीन है, एक हिस्टोन, दूसरा नॉन हिस्टोन. आई होप वेरी क्लियर यू आर अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब हाँ, प्रोकैरियोटिक बात करूं तो वो हिस्टोन नहीं है, वो तो हिस्टोन है ही नहीं, तो वो है तो नॉन हिस्टोन ही. बट हम जो रेफरेंस से बात कर रहे हैं ना, वो रेफरेंस एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से ही बात कर रहे थे तब. NHC इज विथ रेफरेंस टू यूकैरियोटिक सेल, है ना? ओके, ऑलराइट, फाइन. एनी अदर डाउट, क्वेश्चन? यस. सर कल आपने वो बोला था ना कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है तो उसमें दो आरएनए के पॉलीमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बनते होंगे ना? बन जाते हैं. तो एडेनिन के सामने तो उस टाइम पे कोई भी जुड़ सकता है या सिर्फ वो जुड़ेगा, यूरासिल जुड़ेगा उसके सामने? जिस फ्लो में मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ना, वो फ्लो नहीं था. मींस आई कुड नॉट बी एबल टू गेट व्हाट यू हैव सेड टू मी और आस्क्ड टू मी. सो कैन यू रिपीट इट अगेन? सर मैं ये कह रहा था कि आपने बोला था कि जो आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड, वो मैं समझ गया. आप क्या पूछना चाहते हैं? वो मैं ये पूछना चाहता था कि एडेनिन के सामने यूरासिल ज्वाइन होता है या नहीं होता? होता है. एडेनिन के सामने यूरासिल का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर. अब वो कहां पर होता है, किस टाइप के वायरस में है, ये सब आने वाला है आगे. लेकिन तब तक आपको यू आर सपोज टू वेट, है ना? हम डेफिनेटली उसको स्टडी करने वाले हैं, उसका यूटिलाइजेशन भी करने वाले हैं. बायोटेक्नोलॉजी में पूरा उसका वो जो प्रिंसिपल है उसका यूटिलाइजेशन भी हम करने वाले हैं. टेक्निक का वो टेक्निक है, वो टेक्निक का हम यूटिलाइजेशन भी करेंगे, लेकिन लेटर ऑन चैप्टर्स में आने वाला है. इज इट वेरी क्लियर? फाइन, ऑल राइट. सो आई विल सी यू टुमारो.